Hello class 9 students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to mathematics class. This is lecture number 7, and as you already know, in first 6 lectures we finished two very important topics. The first topic was number system, the other topic was polynomial. You learned many new things, you encountered many new things in number system. We encountered irrational numbers, we learned how to handle surds. We also fused this surds concept with algebraic identities. You learned what is a plus b whole square, you learned what is a minus b whole square, you went beyond to 3 degree, you learned what is a plus b whole cube, you learned what is a minus b whole cube, you derived what is a cube plus b cube, and then you went further beyond and you finished a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Now these identities which I have just mentioned, these identities are something which is going to be your companion of your mathematical life. So never ever forget these identities. It should be on your tip, when even in the, it should be so ingrained in you, so that even in the night, in the middle of the night, someone wakes you up and asks you about these identities, you should be able to speak these identities. This is that important. And you are not going to just mugify everything. You are just going to first derive all the identities. If you have derived 2 times, 3 times, 4 times, then it naturally gets into your head, and it just naturally takes the place of your permanent memory. So don't underestimate the power of doing something in repetition. So that's like one of the important mantra you should keep in mind. In polynomial was something new for you. Again, it was like you had been exposed to algebra in your previous classes, and polynomial was something where you were trying to learn a special type of algebraic expression. You learned so many new things about polynomial, you learned so many definitions related to polynomial, there were so many terms you learned. At the same time, you learned factor theorem, remainder theorem. So if you ask me, the length and breadth of the content you have covered in these two chapters were really big, were really good, and were really difficult for the starting point. But these contents which you have been exposed becomes the heart and soul of mathematics. So I would request you not to neglect these two chapters. Even if you're facing the problems, it's okay. If you're not able to solve it, then also it's okay, because that is where you are learning. That is the point where you are trying to understand. At the same time, if you have doubts, you have already your academic mentors. Please call them and tell all your doubts. He or she would arrange your mathematics session with mathematics teacher. Even if like your doubts is little longer, then you can send us email and you can write all your doubts there. We'll arrange the online session. We will also arrange the live session for for your doubt clearance. At the same time, you're facing individual problem, then also we'll allocate teacher for you and will help you cruise that thing. At the same time, in the problem solving part of these two chapters, we covered very easy problems. At the same time, we covered very difficult problems as well. Those difficult problems were testing your concept of problem solving skills, your concept of conceptual clarity, concepts of structural thinking, that how you can handle multiple concepts together. So these that was amazing learning drills. So I'm sure you guys followed it well. At the same time, the problem solving exercise of these two chapters would be again coming very regularly, very frequently in entire class 9 session. At the same time, as you all are aware that we have already started covering many of the polynomial questions and many of the indices and surds question in Can You Solve It series. So Can You Solve It series is something very important for class 9, 10th and 11th students. Class 9 students, if you are not following Can You Solve It series, then go to Infinity YouTube channel and watch all the questions which we have covered in Can You Solve It series. Those questions are going to be very important and going to be very helpful. Those chapters are going to build the foundation for your problem solving skills. At the same time, we'll be conducting a separate test based on your Can You Solve It series. So if you're neglecting it, it's high time. You should not neglect it. You should go and watch everything we are discussing in Can You Solve It series. Now coming back to the topic of today, we are going to start a very new topic and one of the most important branch of mathematics, which is going to be part of your mathematical life as long as you are
going to study mathematics, even if you're going to study any of the sciences, economics, coordinate geometry is something which is not going to leave you. So what exactly is this coordinate geometry? It has another name also called analytical geometry. So let's see what we have in store for coordinate geometry, the content today which we are going to discuss. In class 9th, we are going to discuss the contents which you can see on your computer screen. You see introduction, Cartesian coordinates, quadrants, and plotting a point whose coordinates are known. And I have boxed these 4 topics. Why did I box it? Because these 4 topics are topics which finished your NCERT class. So if you go and watch your NCERT book and syllabus, you will see only these 4 topics are there in that. But coordinate geometry is something like an evolving thing. You will be studying coordinate geometry in 10th also. You will be studying coordinate geometry in 11th. At the same time, if you appear in your competitive exams, they are going to ask questions from coordinate geometry, and they are not going to stick to only 4 topics which are given in in your NCERT book. They are going to ask questions from outside the box also. So I have got many extra topics for your students, so that you have a advanced understanding and you have a strong preparation for your competitive exams. So topics which are not part of NCERT but we are going to cover in this lecture is distance between 2 points when the points lie on the same axis, distance between any 2 points lying in the Cartesian plane. So we'll learn what exactly these are. We'll also talk about distance formula, we'll talk about area of triangle, we'll talk about conditions for collinearity, we'll talk about area of quadrilateral. So let's see what exactly, if you look into the word coordinate geometry, so you have coordinate, you have geometry. So you're fusing coordinate with a coordinates, you're fusing geometry with a coordinate system. So that is why the name is coordinate geometry. So you can say it's a study of geometry using a coordinate system. You already know what exactly is geometry, and you must have heard this coordinate word in your geography class when you were studying atlas and map and globe. So when did you learn this coordinate system? We talked about latitude and longitude. We used to locate a place through a numerical quantity in terms of latitude and longitude. As you know, equator divides the earth in 2 parts, the northern hemisphere and southern hemisphere. So equator के ऊपर आप जाओगे तो you will be going 0 to 90 degree north of latitude, और नीचे आओगे तो 0 से 90 degree south of latitude. At the same time longitude भी अगर आपको याद हो, पोल से पोल जो लाइन कनेक्ट होता है वो longitude होता है, और वो आपके ग्लोब को ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर पे करता है, और किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं बाय knowing what exactly the latitude and longitude is. I'm sure आपको इतना पता होगा. So exactly, let's come back. What exactly is a Cartesian coordinate system that specifies each point uniquely in a plane by a set of numerical coordinates. So if someone asks you what is the use of Cartesian coordinate system, you are just going to say this Cartesian coordinate system helps us to plot or define a point uniquely. And how do you define this point uniquely? Through a pair of numerical coordinates. We'll learn exactly what it is. But when you talk about Cartesian plane or Cartesian coordinate system, the man whose name always comes up, and the Cartesian word which has been taken from this amazing mathematician, this French mathematician of 17th century, Mr. René Descartes. And it is said that this coordinate geometry revolutionized mathematics by providing the first systematic link between Euclidean geometry and algebra. Matlab, this coordinate geometry is amazing link. It links up what 2 things? One is algebra, one is geometry. You know, algebra is something like an constant and variables, and geometry is something like which you can see through shapes and sizes. How these two are connected? So what exactly is connecting this algebra and geometry? This Cartesian geometry or coordinate geometry is something which connects Euclidean geometry with algebra. Euclidean geometry is something very important for class 9 student, because you have one chapter named as Euclidean geometry in your class 9th curriculum. So let's see what exactly we mean by Cartesian coordinate. So when I talk about the coordinate geometry or a Cartesian plane, you draw 2 perpendicular lines, one horizontal lines and one vertical lines. As you can see, you see one horizontal line, that is x dash ox. If you look that's the horizontal line, we are going to call it as x-axis,
and you see a vertical line, that is YOY dash. If you look at YOY dash, it is a vertical line, and the angle between this x axis and y axis is 90 degree. So we define this whole, we have for defining the plane, we have just drew one horizontal line and one perpendicular line. This horizontal line is called x-axis, and this vertical line is called y-axis, and the point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. The ordered pair of a perpendicular distance from both axes of a point P lying on the plane. Let's say अगर आपकी बात हो रही है इसकी कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप कह सकते हो कि मैं इसको दो नंबर से स्टार्ट करूंगा, x और y. ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में क्या फर्क होता है? पेयर होता है जैसे कि आपने कहा राम और श्याम, फिर आपने क्या कहा, श्याम और राम, तो ये हो गया एक पेयर. और द मोमेंट आई से कि जो पहला नाम होगा वो क्लास में फर्स्ट आया है और जो दूसरा नाम होगा वो क्लास में सेकंड आया है. तो इफ आई से राम एंड श्याम, इसका मतलब क्या हुआ, राम फर्स्ट आया और श्याम सेकंड आया. एंड व्हेन आई से श्याम एंड राम, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम फर्स्ट आया राम सेकंड आया. तो क्या वो दोनों सेम है? नहीं. तो ऑर्डर पेयर वो होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो P इज इक्वल टू एक्स वाई लिखा हुआ है, दैट इज अ ऑर्डर पेयर. तो आप किसी भी नंबर, किसी भी पॉइंट को यूनिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बाय एन ऑर्डर्ड पेयर. ये जो पहला नंबर है इसे आप कहते हो एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो दूसरा नंबर है इसे आप कहते हो वाई कोऑर्डिनेट. अब ये जो एक्स ऑर्डिनेट है उसका नाम एक और है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट है उसका क्या नाम है, ऑर्डिनेट. तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यू हैव वन स्पेशल नेम दैट इज एब्सिसा, एंड अदर वाई कोऑर्डिनेट के लिए यू हैव अनदर स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो आप जब भी नंबर लिखते हो तो आप कोई भी पॉइंट, लेट से आप ए प्लॉट करोगे तो आप ए लिखोगे a, b. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एंड इसका मतलब है दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एंड इसका मतलब क्या है? दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. एक्स ऑर्डिनेट का और क्या नाम होता है? इसे हम एब्सिसा कहते हैं. और वाई कोऑर्डिनेट का क्या नाम होता है? इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन आएगा कि ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है. तो आप कह सकते हो P पॉइंट का जो दूरी है, P पॉइंट की जो दूरी है वाई एक्सिस से, क्या P पॉइंट की जो दूरी है वाई एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा. और P पॉइंट की जो दूरी x एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑर्डिनेट. सो इफ समवन आस्क यू what is abscissa and what is ordinate, so you're going to say the distance of point P from y axis is x coordinate, and distance of point P from y axis is ordinate. इसमें एक वर्ड और ऐड होगा, साइन डिस्टेंस, जो अभी हम सीखेंगे. लेकिन आपसे कोई पूछे what is the use of Cartesian plane? Cartesian plane is used for plotting or specifying a point uniquely. How does it represent a point uniquely? It represents a point uniquely through a pair of numerical numbers, that is basically an order pair. और ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर है उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डर पेयर में जो दूसरा नंबर है उसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको कहते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट. एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. और ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. इसमें थोड़ा सा ऐड होगा, वो अभी आपको मैं समझाता हूं. If the Cartesian coordinate of P x y, then x is called the abscissa, और x coordinate of P and y is called. तो आप ये देख रहे हो, अभी हमने इसको बात किया कि x coordinate को आप x को क्या कहोगे? abscissa, और y को कहोगे ordinate. ओके. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन का पॉइंट लूं, ओरिजिन बताइए x, अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से कितना दूर है. तो ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है? तो y एक्सिस पे ही है, तो आप कहोगे 0 दूर है. फिर उसके बाद ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट y से कितना दूर, x एक्सिस से कितना दूर है. y ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आप x एक्सिस से कितना दूर है. तो जो ओरिजिन है वो x एक्सिस से कितना दूर है? x एक्सिस पे ही है, तो आप बोलोगे 0 यूनिट दूर है. तो आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या कहोगे? 0,0. y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, आप x एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ, x एक्सिस के किसी भी पॉइंट को पिक करो, वो x एक्सिस पे आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, और आपसे पूछा जा रहा है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है. y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि वो x एक्सिस से कितना दूर है. तो आप जानते हो ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे ही हैं, तो आप कह सकते हो y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0.
एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस पे ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, और मैं इन सारे पॉइंट्स का पूछूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, तो आप कह सकते हो कि वाई एक्सिस से ये पॉइंट्स कितने दूर है, तो ये वाई एक्सिस पे ही है, तो आप कह सकते हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो आपसे कोई पूछता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे 0,0। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है वो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो उसका एब्सिसा 0 होगा। वो जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसलिए उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। आपसे कोई पूछता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से 0 दूर है। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है कैसे पता चलता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो आप क्या कहोगे कि हाँ इसकी ऑर्डिनेट 0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसकी 0। तो एक्स एक्सिस पे जितनी भी पॉइंट होगी इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी 0, और वाई एक्सिस पे जितनी भी पॉइंट होगी उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी 0। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया एक्स एक्सिस, दूसरा वर्टिकल लाइन बनाया वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, राइट। तो इसने क्या किया, ये पूरा जो प्लेन है, ये जो लाइन है ये एक्सटेंड इन्फिनिटली जाता है, दोनों तरफ से अलग जाता है। ये एरो क्या बता रही है, तो आपने जो पूरा प्लेन है ना, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। जहां पे आपने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, जहां पे आपने जिस प्लेन पे, जिस फ्लैट सरफेस पे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस द हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस द वर्टिकल लाइन, जहां पे बना दिया उस पूरे सरफेस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। आपने कार्टेशियन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड कर दिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ये जो रीजन 1 है, ये जो रीजन है जिसे आप कह सकते हो एक्स ओ वाई, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस कह सकते हैं वाई ओ एक्स डैश को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप क्या कह रहे हैं, आपने जो 4 रीजन्स डिवाइड किए उसे आप कह रहे हो क्वाड्रेंट। क्या कह रहे हो उसे, क्वाड्रेंट। ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। ये क्या है, क्वाड्रेंट। ये क्या है, क्वाड्रेंट। तो आपने 4 क्वाड्रेंट्स बनाया। आपने ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट रखा, इसको आपने सेकंड कहा, इसको क्या कहा, सेकंड। इसका लॉजिक है कि क्यों हम इसको सेकंड कहते हैं। फिर इसको आपने क्या कहा, थर्ड, और इसको आपने क्या कहा, फोर्थ। तो आपने कहा कि आपका जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो गया है। एक्स एक्सिस क्या है, एक्सओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, वाईओ वाई डैश इज वाई एक्सिस, बोथ आर परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और वो जो 4 रीजन्स बन गए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब देखिए अगर मैं कहूं कि आप यहां पे कहीं पे हो इस पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा कि आप मान लीजिए, लेट्स से इफ आई से कि आप यहां पे कहीं पे लाई करते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे लाई करते हो, और एट द सेम टाइम मैं बोलूं यहां पे भी एक पॉइंट है, फिर एक बात बोलूं कि भाई यहां पे भी एक पॉइंट है, और फिर मैं कहूं यहां पे भी एक पॉइंट है। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स को देखिए, ए बी सी डी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोल रहे हो ये कितना दूर है, तो आप देख रहे हो ये 2 यूनिट दूर है, तो आप बोल रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। और फिर आपसे पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोल रहे हो 4 है, 1 2 3 4। तो आप कह रहे हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2 4 है। आप जब इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसका भी ये 2 यूनिट दूर है और ये 4 यूनिट दूर है। एट द सेम टाइम आप देख रहे हो ये पॉइंट भी 2 यूनिट दूर है और ये सी भी 4 है। तो अगर मैं सी की बात करूं तो ये भी 2 यूनिट एक्स वाई एक्सिस से दूर है, बी की बात करूं तो ये भी 2 यूनिट वाई एक्सिस से दूर है, ए की बात करूं तो ये भी 2 यूनिट वाई एक्सिस से दूर है, ये भी 2 और ये भी 4। तो अगर मैं देखूं ए पॉइंट को भी मैं 2 4 लिख सकता हूं, बी को भी मैं 2 4 लिख सकता हूं, सी को भी 2 4 लिख सकता हूं और डी को भी 2 4 लिख सकता हूं। लेकिन चारों सेम तो हो नहीं सकते हैं, चारों पॉइंट को मैं यूनिकली कहां रिप्रेजेंट कर पाया, नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, मैं बोल रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां पे गलती कर रहा हूं। मुझे ये नहीं बोलना है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मुझे बोलना है साइन डिस्टेंस। क्या कहना है, साइन डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है एब्सिसा क्या है, तो आप बोलोगे साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आपसे कोई पूछेगा ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब साइन डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसा कि अगर आप नंबर लाइन पे याद होगा, ये आपका ओरिजिन है, तो राइट में आप पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट में आप नेगेटिव लेते हो, तो आप इसको कहोगे +2, ठीक है,
इसको आप कहोगे -2, इसको आप कहोगे -2, इसको आप कहोगे +2, क्योंकि आप अगर वाई एक्सिस के राइट हो तो आप क्या कहोगे, वाई एक्सिस के राइट प्लस और वाई एक्सिस के लेफ्ट निगेटिव, डिस्टेंस बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है वाई ऊपर, मतलब आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्स एक्सिस के नीचे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर को आप पॉजिटिव बोलोगे और एक्स एक्सिस के नीचे को आप नेगेटिव बोलोगे, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वाई एक्सिस के राइट हो और एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो आपका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, आप वाई एक्सिस के लेफ्ट हो और एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो एक्स एक्सिस का ऊपर तो ये पॉजिटिव हो गया और वाई एक्सिस के लेफ्ट ये नेगेटिव है। आप कह सकते हो कि आप वाई एक्सिस के लेफ्ट हो और एक्स एक्सिस के डाउन हो तो आप क्या हो गए, दोनों नेगेटिव। आप कह सकते हो आप एक्स वाई एक्सिस के राइट हो और एक्स एक्सिस के डाउन हो तो आप क्या गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप कह सकते हो कि अगर आप ओरिजिन के राइट जाते हो तो पॉजिटिव ऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, और अगर लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव एब्सिसा होता है। ओरिजिन के ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव ऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन के नीचे जाते हो तो नेगेटिव ऑर्डिनेट होता है, जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो आपका चारों क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4, तो क्वाड्रेंट 1 में चारों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 1 में एब्सिसा क्या होता है, पॉजिटिव। एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। इसमें क्या है, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। इसमें क्या है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो देखिए राइट में एक्स पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट में एक्स नेगेटिव हो गया। above x axis y positive, below x axis y negative. So we can say first quadrant is plus plus, second quadrant is minus plus, third is minus minus, fourth is plus minus. एट द सेम टाइम आप जब x कोऑर्डिनेट पे होगे तो ये पॉजिटिव साइड है तो आप इसको कह सकते हो +0, मतलब जो भी डिस्टेंस है वो प्लस अपॉन जीरो। क्या मतलब, जीरो का मतलब है आप x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हो, x एक्सिस का मतलब y ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, मतलब ऑर्डिनेट 0 का। और अगर आप निगेटिव x एक्सिस पे आओगे तो आप कहोगे -0। तो अगर आप x एक्सिस पे लाई कर रहे हो तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और एब्सिसा क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव x एक्सिस पे हो तो प्लस होगा, और अगर आप नेगेटिव x एक्सिस पे तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस पे लाई कर रहे हो तो अगर ऊपर लाई कर रहे हो तो एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और अगर आप नीचे लाई कर रहे हो तो एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एट द सेम टाइम आपको ये पता चल चुका है कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सो वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एज यू कैन रीड इट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट दिस इज व्हाट वी टॉक्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ा ये समझ लो, फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने सीखा कि कार्टेशियन प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि वो किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिकली, बाय ऑर्डर पेयर। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता है, ऑर्डर पेयर, न्यूमेरिकल ऑर्डर पेयर लेता है। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड अलग अलग चीजें हैं, पेयर को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। ऑर्डर पेयर से हमने क्या सीखा कि पहला जो कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है क्या है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा का डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज विद अ साइन। अगर आप राइट में तो प्लस और लेफ्ट में तो नेगेटिव। और ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब अगर आप ऊपर हैं तो पॉजिटिव, नीचे हैं तो नेगेटिव। एट द सेम टाइम कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। दोनों के पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ तो एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा कुड बी एनीथिंग, ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर आप राइट साइड में तो एब्सिसा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होगा। अगर आप वाई एक्सिस पे हो, ऊपर चले गए तो आपका एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर आप वाई एक्सिस पे हो और नीचे चले गए हो तो आपका एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये अब तक हमने पढ़ा। तो जैसे ही आपने कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉक है। 1 से आप देख रहे हो, 1 से आप जा रहे हो 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक आप जा रहे हो। तो एंटी क्लॉक में आपको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 पता चल गया। उसके बाद आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में
एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है क्योंकि y के लेफ्ट चले गए हो। आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट इज समथिंग लाइक बिलो y एंड लेफ्ट ऑफ x, तो मतलब नेगेटिव एब्सिसा एंड नेगेटिव ऑर्डिनेट। और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप यू आर ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस, सो एब्सिसा इज पॉजिटिव, बट यू आर बिलो x एक्सिस, सो ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो अब तक हमने ये पढ़ा है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। If the coordinate of a point P x y we generally write as P as x, y, जो हमने अभी बात भी की थी, और अब आपको कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से भी समझ में आने लगा है। The abscissa of a point is its perpendicular distance from y axis with a sign. आपको क्या करना है, is a perpendicular sign distance लिखा है, perpendicular sign distance ऐड कर लीजिएगा, क्या साइन डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन क्या है, अगर आप y एक्सिस के राइट जाते हैं तो पॉजिटिव और y एक्सिस के लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव। अगर आप x एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। The abscissa of a point situated on the right side of y axis is positive and abscissa of a point situated on the left, वही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। The ordinate of a point situated above x axis is positive and that below x axis is negative. कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। If y is equal to 0, the point is situated on x axis। आपको पता है x axis पे ऑर्डिनेट 0 होता है, तो अगर y is equal to 0 इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, अगर y is equal to 0 है तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप x axis की बात कर रहे हो, और x is equal to 0 तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप y axis की बात कर रहे हो। मतलब अगर ऑर्डिनेट 0 है तो आप x axis पे हो, और अगर एब्सिसा 0 है तो आप y axis पे हो, इसे हमेशा याद रखना। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 है तो इसका मतलब आप ओरिजिन पे हो, मतलब आप x एक्सिस पे भी हो, y एक्सिस पे हो। ये कब होता है, जब आप ओरिजिन पे होते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एब्सिसा पे, आप x एक्सिस पे भी हो और y एक्सिस पे हो, तभी आपका दोनों चीजें 0 हो जाता है। एट द सेम टाइम ये आपको समझ में आ गया है। प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर नोन। अब ये जो है आपकी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है। तो आपको पता है कि प्लॉट करने का तरीका है कि आपको पहले पता होना चाहिए जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एब्सिसा है या नेगेटिव एब्सिसा है, पॉजिटिव ऑर्डिनेट है या नेगेटिव ऑर्डिनेट है। तो आपको क्वाड्रेंट सबसे पहले समझना होगा कि आपका क्वाड्रेंट क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपको पता चल गया, आप साइन देख के बता सकते हो। अगर दोनों में से कोई एक 0 है, अगर एब्सिसा 0 है तो आप y एक्सिस पे हो, ऑर्डिनेट 0 है तो आप x एक्सिस पे हो। अगर एब्सिसा ऑर्डिनेट में से कोई एक 0 है तो फिर उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सिसा या ऑर्डिनेट होगा। अगर मतलब अगर एब्सिसा 0 है तो आप y एक्सिस पे हो, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव y एक्सिस पे हो, ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो आप नेगेटिव y एक्सिस पे हो। अगर आपका ऑर्डिनेट 0 है तो यू आर ऑन x एक्सिस, एब्सिसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे हो, एब्सिसा नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस पे हो। सो द पॉइंट कैन बी प्लॉटेड बाय मेजरिंग इट्स प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट ड्रॉ करना है h, k, आपको क्या करना है, h, k पॉइंट को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप h को मेजर कर लो। तो आपने, सिंस मुझे पता है लेट से h भी पॉजिटिव है और k भी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, मैं OM ड्रॉ करूंगा जो कि h की लेंथ का होगा। किसकी लेंथ का होगा, h की लेंथ का। तो मैंने OM ड्रॉ किया और ये क्या मेजर किया, h अगर नेगेटिव होता तो मैं इधर ड्रॉ करता, h पॉजिटिव है तो मैं राइट में ड्रॉ करूंगा, h नेगेटिव होता तो इधर ड्रॉ करता, राइट। आपने जैसे ही OM ड्रॉ कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर मेजर बनाना है MP। अगर k पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओगे, k नेगेटिव है तो नीचे ले जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द साइन। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे और नेगेटिव है k तो इधर आओगे। अगर आप h नेगेटिव है तो आप इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो। तो लेट से अगर आपको h, k प्लॉट करना है और दोनों पॉजिटिव है तो आप सबसे पहले OM ड्रॉ करो। जैसे लेट से मुझे 3, 4 ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ पे लेट्स आई चेंज द कलर, लेट्स आई टेक ग्रीन। तो मैंने क्या किया, 3 ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया, लेट से मैंने इसे OQ कहा और Q के, और मुझे 3, 4 है तो मैं कितना कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, तो मैंने 4 परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मैं ये क्या कहूंगा, दिस इज लाइक R, तो R इज 3, 4। अगर मुझे मान लीजिए 3, -4 करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ से 3, यहाँ पे मैं -4 पे आ जाता और मैं इसे कहता S इज 3, -4। अगर मान लीजिए मुझे -3, -4 करना होता तो 1, 2, 3, -3 और फिर 1, 2, 3, 4,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा t दैट इज -3 -4। और अगर मैं ऊपर 4 ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर 4 ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -3 +4। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को करते हैं। तो आप क्या करो, कोई भी पॉइंट हो आप उसका साइन देख लो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड क्वाड्रेंट का है कि थर्ड क्वाड्रेंट का है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है। जिस भी क्वाड्रेंट का है उस डायरेक्शन में आप आगे स्टोरी बढ़ा दो। तो आपको अगर कोई पूछता है, लेट्स से एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। So what you need to remember, मान लीजिए आपको किसी ने प्लॉट करने को दे दिया -2,5। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2। तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट जाओगे, आपने -2, लेट्स से आई विल टेक गोल्डन कलर, तो मैंने क्या ले लिया, 2 पॉइंट्स ले लिया -2, और 5 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, मैं ऊपर 5 का परपेंडिकुलर बना दिया एंड दिस इज माई के पॉइंट दैट इज -2,5। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। तो स्टेप 1, लुक फॉर द साइन, कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो राइट जाइए और नेगेटिव है तो लेफ्ट जाइए। अपने मेजरमेंट के बाद क्या करना है, उसके बाद आप ऑर्डिनेट का साइन देखिए, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ऊपर जाइए, ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नीचे जाइए और कॉम्पस से आप प्लॉट कर लीजिए। ये आपका क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का बुक है ये खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सेम एक्सिस। अगर मान लीजिए एक पॉइंट आपको दे रखा है, लेट्स से ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, चौथा पॉइंट है डी, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ ए। ओ ए का डिस्टेंस पूछा गया, क्या पूछा गया, ओ ए का डिस्टेंस। तो आप जानते हैं ए क्या है 3,0, तो आप कह सकते हो ओ ए इज 3 - 0 दैट इज 3। तो आप कह सकते हो ओ ए की दूरी क्या है 3। उसी तरीके से कोई पूछता है ओ बी की दूरी बताओ, ओरिजिन से बी का दूरी, तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हो ये एक पॉइंट क्या है -5, तो आप कह सकते हो -5, सॉरी हमेशा आप, ओरिजिन क्या है 0,0 और ये क्या है -5,0, तो आप हमेशा ओरिजिन से लो 0 -5, क्या हो गया 5। तो आपसे कोई पूछा डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, आपने बोला 3। आपसे कोई पूछा डिस्टेंस बिटवीन ओ बी, तब भी आपने कहा 5, क्योंकि डिस्टेंस को आप हमेशा पॉजिटिव बताते हो। लेकिन अब आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी 3 है और बी क्या है -5, तो 3 -5 का आप मॉड ले लो, क्या बन गया 8। तो आप कह सकते हो ए बी की जो दूरी है वो कितनी है 8 यूनिट। सिमिलरली आपसे कोई पूछता है ओरिजिन और सी की दूरी, तो आप देख सकते हो दिस इज 0,4, तो आप कह सकते हो 4 - 0, तो ओरिजिन और सी की दूरी क्या है 4। एट द सेम टाइम कोई पूछता है ओरिजिन और डी की दूरी, आप देख सकते हो 1 2 3 3 स्टेप्स दूरी है, तो आप कह सकते हो 3 यूनिट। तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। और अगर आपसे कोई पूछता है सी और डी, तो आप कह सकते हो 4 - -3 दैट इज 7 यूनिट। तो आइए देखें क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 3 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 8 यूनिट्स। आप देख सकते हो काउंट करके 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट। तो आप कह सकते हो ए बी के बीच में कितने के जम्प्स हैं 8 जम्प्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन आप देख सकते हो 4 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ओरिजिन आप देख सकते हो 3 यूनिट, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी एंड डी इज 7 यूनिट। तो जब अगर आपको ये पता है कि दोनों पॉइंट लेट से एक्स कोऑर्डिनेट पे x1 और x2, जिसमें आपको पता है x1 x2 से बड़ा है, तो जो दूरी होगी डिस्टेंस बिटवीन ए बी वुड ऑलवेज बी मॉड ऑफ x1 - x2। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाई कर रहा है तो ऑर्डिनेट 0 है, आपको बस एब्सिसा, दोनों एब्सिसा का डिफरेंस निकालना है और उसकी मॉड वैल्यू लेनी है। आप कह सकते हो दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। सिमिलरली अगर आपकी 2 पॉइंट y एक्सिस पे है 0,y1 0,y2 और आपसे कोई पूछा है दोनों की दूरी, तो आप कह सकते हो मॉड ऑफ y - y2। मॉड लेने का सेफ रहता है कि बार बार हम ये नहीं देख सकते कि y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, यू कैन सिंपली पुट इन द मॉड, क्योंकि फाइनल आंसर हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, साइन डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं।
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग इन द कार्टेशियन प्लेन, जैसा कि आप देख रहे हो P इज x1 y1 और Q इज x2 y2, और आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने P से L को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इफ यू लुक, PL का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, QM का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और फिर क्या किया, QR को कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो आपके पास एक ट्राइंगल है PQR। सो इफ यू लुक हियर, this is your triangle PQR. If you look in the blue triangle, this is the blue triangle PQR, right? Everybody can see this, है ना। हमने क्या किया है, ये जो ट्राइंगल है PQR ये बन गया है। आपको ये ब्लू ट्राइंगल दिख रहा है, आई एम श्योर सबको दिख रहा होगा, राइट। अब आप ये जो PQR ट्राइंगल है, आई एम श्योर आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। आप देख रहे हो कि R और Q के बीच की दूरी क्या है, आप देखो L क्या है, L है x1, 0 और M क्या है x2, 0। तो आपको पता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, x1 माइनस x2 का मॉड, या आप सिंपल x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है x1 बड़ा है x2 से। तो QR का लेंथ क्या हो गया, x1 माइनस x2। एट द सेम टाइम अगर आप देखो, ये P है y1, ये क्या है, P की दूरी है y1 और R क्या है y2। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बताइए, y1 माइनस y2। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं PQR, तो हाइट क्या है, हाइट है y1 माइनस y2, बेस क्या है x1 माइनस x2। तो ये PQ क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहां से आया ये, पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आप जानते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि क्या है, तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी y1 माइनस y2। क्यों आप कह रहे हो ये y1, क्योंकि आप जानते हो ये x1 y1 है। आप देखो ये y2 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये होगा x1 y2, राइट। क्योंकि y2 इतनी ही दूरी है जितनी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप कह सकते हो इसकी दूरी बराबर है, ये सेम लाइन पे है, तो y1 माइनस y2 ये दूरी हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, x1 माइनस x2। अगर आप इसको ऐसे प्लॉट भी यहाँ पे भी प्लॉट करोगे तो आप क्या होगा, ये होगा y1, और इसको प्लॉट करोगे तो y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, y1 माइनस y2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x1 माइनस x2। और ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट वुड बी इक्वल टू PQ, राइट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ, तो आप कह सकते हो इस तरीके से। तो आप फॉर्मूला की तरह देखोगे तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास पॉइंट A है और पॉइंट B है, इसका एब्सिसा मान लीजिए A, B है, और इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट P, Q है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो आप कह सकते हो A माइनस P का होल स्क्वायर प्लस B माइनस Q का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा का डिफरेंस क्या है, A और B, और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट क्या है, B माइनस Q। तो दोनों का स्क्वायर का ऐड करने के बाद अंडर रूट ले गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला अगर कोई पूछता है P x1 y1 है, x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कहां से आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है। कैसे, आप कार्टेशियन प्लेन से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अगर मैं ये राइट ट्रायंगल की ड्रॉ करूं जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, अगर आप इसको ड्रॉ, आप इस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे तो इस ट्रायंगल की जो आपको हाइट दिखेगी वो क्या होगी, y1 माइनस y2, और जो इस ट्रायंगल की बेस दिखेगी वो क्या दिखेगी, x1 माइनस x2। तो बेस पता चल चुका है, हाइट पता चल चुका है, और ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर, और तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज different under root difference of abscissa square plus difference of ordinate square, and this is what you can call it as distance formula as well. अगर मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, तो आप इस, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आपको बस वो स्क्वायर करके ऐड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकल के आ जाएगा, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ 3,4 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 5। अगर मैं पूछूं -3,4 का डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट। तो आप देख सकते हो
जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अभी आपको ग्राफ पे दिखा सकता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और मान लीजिए ये पॉइंट 3,4 है। तो सेम अगर आप यहाँ पे मिरर की तरह देखोगे तो ये क्या होगा, -3,4। अब सेम यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, -3,-4। और यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या होगा, 3,-4। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दूरी है, दिस इज वन डिस्टेंस, दिस इज वन डिस्टेंस, दिस इज वन डिस्टेंस, दिस इज वन डिस्टेंस ना। ये जो चारों दूरी है ये बराबर होगी। कितनी बराबर होगी देखिए कैसे, ये लेंथ क्या होगा 5, ये लेंथ क्या होगा 5, ये लेंथ क्या होगा 5, ये लेंथ क्या होगा 5। तो आप देख सकते हो ये सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे, राइट। वो बात की बात है, लेकिन आप ये समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस से ओरिजिन क्या होता है। आप उस पॉइंट के एब्सिसा को स्क्वायर कर दीजिए और ऑर्डिनेट को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वो आप निकालिए। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। दिस इज जस्ट द कोरोलरी, और यू कैन से मतलब अ कॉमन रिजल्ट फ्रॉम द पास्ट रिजल्ट। ओके, अब बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, x1 y ABC दे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया लेट से निकालना है, इस ब्लू ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। तो मैं इस ब्लू ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। कार्टेशियन प्लेन में इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या कहते हैं, इसको एक ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला ही बना देंगे। तो मतलब बार बार आपको ये ज्योमेट्री देखने की जरूरत नहीं है। तो बस लेकिन पहली बार हम मेहनत करेंगे, पहली बार हम मेहनत करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे, और वो फॉर्मूला को फिर हम जनरलाइज कर देंगे कि जब भी आपसे कोई ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए वर्टिसेस से, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप, मैं ट्रायंगल एबीसी के साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने बी से एल ड्रॉ कर दिया। अगर आप गौर से देखो तो एक बी एल ड्रॉ हो गया है, एक ए एम ड्रॉ हो गया है, एक सी एन ड्रॉ हो गया है। तो मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब आप गौर से देखोगे कि आपके पास एक येलो ट्रेपेजियम बन गया है, ये एक येलो ट्रेपेजियम बन गया है, एक पिंक ट्रेपेजियम बन गया है, और आप देखिए नीचे जमीन पे एक ये जो एक और ट्रेपेजियम है जो दोनों का मिक्स है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से शेड भी कर दिया है। तो आप देख रहे हो कि ये एक ट्रेपेजियम है, दूसरा ये एक ट्रेपेजियम है, और तीसरा नीचे एक ट्रेपेजियम है। अगर मैं इस ट्रेपेजियम को और इस ट्रेपेजियम को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, और उस टोटल एरिया से इस ट्रेपेजियम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल एरिया से नीचे वाले ट्रेपेजियम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए क्या है, ABLM इज माय येलो ट्रेपेजियम, AMNC इज माय पिंक ट्रेपेजियम, एंड BLNC इज माय हाइब्रिड ट्रेपेजियम, जो कि आप देख रहे हो, दिस इज BLNC इज माय हाइब्रिड ट्रेपेजियम। तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM। अब देख लो, येलो एरिया प्लस पिंक एरिया, येलो एरिया प्लस पिंक एरिया माइनस कॉमन एरिया, दिस इज लाइक कॉमन एरिया। तो पिंक एरिया प्लस येलो एरिया माइनस कॉमन एरिया विल गिव मी द ट्रायंगल विच यू कैन सी दिस। तो मुझे इतना पता चल गया कि अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं और AM दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं, तो चलो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालता हूं ABLM, ठीक है। मान लीजिए मैं येलो ट्रेपेजियम में ABLM का एरिया निकाल रहा हूं। किसका निकाल रहा हूं, ABLM का मैं एरिया निकाल रहा हूं। अगर आप ट्रेपेजियम का एरिया याद हो तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इफ यू रिमेंबर दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर ये नहीं पता है तो हम लोग मेंसुरेशन क्लास में इसको प्रूफ करेंगे। आप इसको बस ऐसे अभी याद कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अगर मैं देखूं तो BL और AM पैरेलल है, BL और AM इज पैरेलल। BL कितना ऊपर है, Y2 ऊपर है, और AM कितना ऊपर है, Y1 ऊपर है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज Y1 प्लस Y2। और हाइट क्या है, दिस LM इज हाइट। M का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, और L का कोऑर्डिनेट क्या है, x2। तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा,
x1 माइनस x2, तो मैं कह सकता हूं दिस इज x1 माइनस x2। तो एरिया ऑफ येलो ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। तो ये मुझे येलो ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। ठीक है, आप फिर से देख लो, दिस इज माई पैरेलल साइड्स, BL का लेंथ y2 है, AM का लेंथ y1 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इज y1 प्लस y2। At the same time, height is this, the perpendicular distance between parallel lines, which is LM. LM is M का एब्सिसा क्या है x1 और L का एब्सिसा क्या है x2, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई x1 माइनस x2। सो आई कैन से द एरिया ऑफ येलो ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। सिमिलरली अगर आप पिंक ट्रेपेजियम का देखें, लेट से आप पिंक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, दिस AMNC का एरिया निकालना है, तो पैरेलल साइड क्या है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड क्या है, AM प्लस MN, सॉरी AM प्लस CN, AM प्लस CN। हम ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं AMNC, AMNC का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो AM और CN है, AM देखिए क्या है, AM है y1 और CN क्या है, CN है y3। अगर आप देख सकते हो सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3 है। MN का डिस्टेंस देखो क्या है, इसका एब्सिसा क्या है, इसका एब्सिसा x3 है, इसका एब्सिसा x1 है, तो क्या हो गया x3 माइनस x1, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। घबराइए नहीं, अभी रिजल्ट आपको आएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। तो एरिया ऑफ पिंक ट्रेपेजियम क्या हो गया, दिस वन। आइए अब एरिया ऑफ दिस शेडेड ट्रेपेजियम निकालते हैं, क्योंकि कौन सा ट्रेपेजियम, BLNC का निकालते हैं। BLNC में पैरेलल साइड्स हो गए BL प्लस NC। देखिए BL का लेंथ क्या है, BL का लेंथ y2 है और NC का लेंथ कितना है, y3, तो हमने सम ऑफ पैरेलल साइड निकाल दिया है। अगर हाइट देखो तो ये है हाइट, हाइट क्या है LN, N क्या है x3 और L क्या है x2, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया x3 माइनस x2, एब्सिसा का डिफरेंस आ गया। तो मैं कह सकता हूं हाफ इंटू x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। सो दिस इज द एरिया ऑफ माई, तो अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो क्या होगा, देखो देखो अब देखो, मेरा पहला ट्रैप एरिया क्या था, हाफ इंटू x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2, तो मैंने लिख दिया हाफ इंटू x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक है, हाफ इंटू y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2। पिंक ट्रेपेजियम क्या था, इसको मैं येलो कलर से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कलर इसको मैंने कर दिया येलो कलर से। ठीक है, तो मैंने येलो ट्रेपेजियम येलो से निकाल दिया। अब पिंक के लिए देखो क्या है, पिंक को मैं रेड से दिखा सकता हूं, तो पिंक का हो जाएगा हाफ इंटू देखिए क्या था, ये वाला ट्राइंगल है, तो हाइट हो गया y1 प्लस y3 और डिस्टेंस हो गया x3, सो हाफ इंटू x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। आपको ये पता चल गया कि आपका पिंक ट्रेपेजियम कैसा है। अब माइनस क्या करना है, माइनस में ब्लैक से कर देता हूं, माइनस देखिए हाफ इंटू ये क्या हो गया x3 माइनस x2, हाफ इंटू x3 माइनस x2 और ब्रैकेट में क्या आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3। तो मुझे ये तीनों को सॉर्ट आउट करना है, मुझे ये तीनों को सॉल्व करना सीखना है, तो मैं इन तीनों को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, इसको मुझे सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, लेट्स से आई टेक ब्लू कलर टू सॉल्व इट। ठीक है, तो मैंने हाफ कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, हाफ कॉमन। अब देखिए क्या हो गया, x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3 प्लस माइनस x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब मैं कर रहा हूं पॉजिटिव वाले एक तरफ ऐड कर रहा हूं, नेगेटिव वाले एक तरफ ऐड कर रहा हूं। तो देखिए पॉजिटिव वाले कौन कौन है, x1 y1 पॉजिटिव है, हाफ x1 y1, x1 y2 पॉजिटिव है, हाफ x1 y2,
x3 y1 पॉजिटिव है, x3 y3 पॉजिटिव है, तो x3 का मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, और ये निगेटिव के साथ जा रहा है, तो ये हो जाएगा x2y2 प्लस x2y3। तो मैंने सारे पॉजिटिव को एक साथ रख लिया। अब आ जाइए निगेटिव वाले कौन है, निगेटिव वाले देख लो, x2y2 प्लस x2y1, यहां से दोनों नेगेटिव आ गया, x2y1 एंड x2y2। यहां से नेगेटिव आ गया x1y1 एंड प्लस x1y3। सबको प्लस ले रहा हूं क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर रख दिया है। अब ये माइनस x3y2 है, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस x3y2 और प्लस x3y3। अब गौर से देखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं ताकि आपको आराम से इसको सॉल्व करना आ जाए। अब देखो क्या है, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, रेड से मैं कट करके दिखा देता हूं ताकि यू कैन क्लियरली सी इट। आप देख लो ये x1y1 है और ये x1y1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख लो ये x3y3 है, ये x3y3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप देख लो ये x2y2 है, ये x2y2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या, हाफ इंटू x1y2 प्लस x3y1 प्लस x2y3 माइनस x2y1 प्लस x1y3 प्लस x3y2। अब आप इसको याद नहीं रख सकते हो, लेकिन इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप ये जो स्ट्रक्चर जो हमारे पास आंसर आया, आप कह सकते हो दिस इज द आंसर। अब ये आंसर याद रखने का क्या तरीका है, हाफ आपको पहले से पता है बाहर है, आप ऐसे करो, ऐसे आप स्टार्ट करो x1 x2 x3 x1, यहां लिखो y1 y2 y3 y1। तो आपने क्या किया, आपने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड देन पॉइंट ए, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आप वापस आ गए। ठीक है, अब आप देखो क्या है, देखो मैं रेड से क्या कर रहा हूं, मैं रेड से x1 को y2 से जोड़ रहा हूं, x2 को y3 से जोड़ रहा हूं, x3 को y1 से दे रहा हूं। देखो x1 y2 है, x2 y3 है, x3 y1 है। ठीक है, अब देखो ब्लू से मैं ग्रीन से मैं क्या कर रहा हूं, y1 को x2 से जोड़ रहा हूं, y2 को x3 से जोड़ रहा हूं, y3 को x1 से जोड़ रहा हूं। देखो क्या हो गया, x2 y1 x1 y3 x3 y2। तो आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर से नीचे जितने एरोज आए हैं वो प्लस में आ गए और नीचे से ऊपर जितने आ रहे हैं वो माइनस में आ गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है, लेट्स से तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, अगर आपको कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, बी का कोऑर्डिनेट पी का कॉमा क्यू है और सी का कोऑर्डिनेट आर कॉमा एस है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाफ, अब बार बार ट्रेपेजियम में सब नहीं बनाओगे, हाफ आप लिखोगे पॉइंट ए क्या है, ए कॉमा बी, आप ए अपॉन बी लिख दोगे, बी पॉइंट क्या है, पी अपॉन क्यू, फिर सी पॉइंट क्या है, आर अपॉन एस। तो आप ऐसे कुछ गए, ठीक है, और आर अपॉन एस के बाद क्या आया, ए अपॉन बी। तो आपने पॉइंट ए मेंशन किया। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे ऊपर से नीचे, मान लीजिए ब्लू से आपने ले गए, ऊपर से नीचे आप ब्लू से ले गए और नीचे से ऊपर आप रेड से ले गए। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे हाफ बाहर रखो, इधर मॉड ले लो क्योंकि हमको फाइनल आंसर पॉजिटिव में चाहिए, ऊपर से नीचे वाले को एक साथ रख लो, ए क्यू प्लस पी एस प्लस आर बी माइनस नीचे से ऊपर वाले को माइनस ले जाओ, बी पी प्लस क्यू आर प्लस एस ए। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी अगर आपको कोई ट्रायंगल ऑफ एबीसी निकालना है तो आप तीनों कोऑर्डिनेट को लिखो। आप सबसे पहले क्या लिखो, x1 y1 लिख दो, फिर x2 y2 लिख दो, फिर x3 y3 लिख दो, फिर x1 y1, जहां से कहानी शुरू हुई थी उसके आगे क्या करो, हाफ करो, नीचे वाले सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऊपर वाले सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके
मॉड ले लो, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल द थ्री वर्टिसेस आर गिवन। अब जैसे अगर आपसे पूछता है कि कोलिनियरिटी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा 3 पॉइंट से चेक करो ये कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। अगर 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करता है तो आप कहते हो कोलिनियर है, और तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई नहीं करता है तो वो नॉन कोलिनियर होता है। जब भी 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। तो अगर आप जब भी 3 पॉइंट्स से अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो, उसका एरिया अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल, वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। अगर आप कोई भी 3 पॉइंट से एरिया निकालते हो जिसका एरिया 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल नहीं बना है। कब 3 पॉइंट्स का ट्राइंगल नहीं बनता है, जब वो तीनों कोलिनियर होते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोलिनियर है कि नहीं, तो आप क्या करो, आप सीधे लिखो हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, चेक करो कि ये 0 है कि नहीं। मतलब कैसे, आपको पता है, आप ऊपर से नीचे वाले सबको क्या करोगे, प्लस में ले जाओगे, और नीचे से ऊपर वाले को क्या करोगे, माइनस में ले जाओगे। तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। क्या किया आपने, देखो मैं बता देता हूं किसको आपने, ये देखो आपने इनको, फिर इनको और इनको प्लस में ले गए। अब देखो ग्रीन से दिखा देता हूँ माइनस वाले, y1 x2 y2 x3 और y3 x1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये अगर 0 हो गया तो मतलब कोलिनियर है, अगर 0 नहीं हुआ तो मतलब वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल है इसका मतलब क्या हुआ, वो तीनों कोलिनियर नहीं है। तो हमेशा चेक करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है। उसी तरीके से कहानी सिर्फ आपकी ट्रायंगल पे नहीं आएगी, कहानी आपसे क्वाड्रिलेटरल की भी पूछी जा सकती है। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देख सकते हो ABCD आपके पास 4 पॉइंट है और आपको क्वाड्रिलेटरल का बताना है एरिया, तो आप देख सकते हो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, जिसका A कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C कोऑर्डिनेट x3 y3 और D कोऑर्डिनेट x4 y4 है। ठीक है, आपका ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया अगर आप गौर से देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 ट्राइंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 2 ट्राइंगल है। तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, इसका एरिया निकल के आ गया। और दूसरा ब्लू का एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू, अब देखिए क्या है, x2 x3, आप x4 से ले लो, तो आप लिख दोगे x4 y4 x3 y3 x2 y2 x4 y4। आप इसमें x1 y1 नहीं लोगे क्योंकि x1 y1 इसका पार्ट नहीं है। आप इसका एरिया निकाल लोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो आपको जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए इसका एरिया निकालना है, पेंटागन, या मान लीजिए हेक्सागन, या मान लीजिए, सॉरी सर्कल बन गया, सॉरी क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, तो भी आपको क्या है, जब भी कोई पॉलीगॉन होगा तो आपको बार बार इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इससे, जैसे मान लीजिए आपको ये पेंटागन का एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो, आप इसको x1 y1 कह लो, इसको x2 y2 कह लो, इसको x3 y3 कह लो, इसको x4 y4 कह लो। हमेशा ऑर्डर फॉलो करो, एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर फॉलो करो, है ना। मैंने एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर फॉलो किया, x1 y1 x2 y2 x3 y। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाफ अंदर, अब क्या करो, लेट से x1 y1 लिख दो, x2 y2 लिख दो, x3 y3 लिख दो, x4 y4 लिख दो, x5 y5 लिख दो। लेकिन खत्म कहां पे होगा, कहानी स्टार्ट हुई थी यहां से, x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 है, फाइनली खत्म होगी x1 y1 पे। तो जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म करना है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप रेड वाले को एक साथ ले लो, डाउन एरो एक साथ चला गया,
डाउन एरो एक साथ चला गया, तो मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू मॉड x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y4 प्लस x4y5 प्लस x5y1। आपने सारे इसको एक साथ कर दिया, माइनस में क्या होगा, मान लीजिए ब्लू है, मान लीजिए ब्लू ले लीजिए, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x1। तो आप क्या करोगे, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x5 प्लस y5 x1। आप इन दोनों का डिफरेंस को हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका पेंटागन का एरिया आ जाएगा। इससे हमने आपके थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो क्लास 9th में आपको जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाननी थी उससे हमने कहीं ज्यादा सीख लिया, इसलिए बहुत सारे बच्चों को परेशान हो गए होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है। आराम से 2 से 3 बार आप लेक्चर जब देखोगे, नोट्स बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर आपको याद हो तो जल्दी से मैं इसी से रिकैप करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आए। पहले कंटेंट में देखिए हमने क्या क्या बात की। हमने इंट्रोडक्शन पे बात की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात की, क्वाड्रेंट की बात की, ये आपके एनसीईआरटी से है। उसके बाद हमने ये डिस्टेंस निकालना सीखा जब एक्सिस पे लाई करता है, कार्टेशियन प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ पोलैरिटी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमने अपनी चैप्टर्स को खत्म किया। इंट्रोडक्शन में जैसा कि जल्दी से क्विक रिविजन हो जाए, तो क्विक रिविजन के लिए आपको मैं जैसा कि बता देता हूं कि कार्टेशियन प्लेन मिस्टर रेने डेकार्ट की वजह से आया था 17th सेंचुरी में। दिस वाज द वेरी रिवॉल्यूशनाइज्ड मैथमेटिक्स बाय कनेक्टिंग यूक्लिडियन ज्योमेट्री विद अलजेब्रा। कार्टेशियन का पर्पस क्या है, ये किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। कैसे, बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। वो जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर आपको पता है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन एब्सिसा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। साइन डिस्टेंस, साइन क्या है, अगर आप वाई एक्सिस के राइट है तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस के लेफ्ट है तो नेगेटिव। ऑर्डिनेट क्या होता है, साइन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट आपने बताया था। फिर आपने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है। ये आपके पूरे प्लान को किस में डिवाइड करता है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। आप एंटी क्लॉक जाते हो। क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में एब्सिसा नेगेटिव हो जाता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है। क्वाड्रेंट 3 में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ, ऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ, एब्सिसा 0 होगा। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0,0। ये सारी चीजें हमने सीखी थी, विच वॉज द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। एट द सेम टाइम क्वाड्रेंट के बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था कि किसी को भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपका एब्सिसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप उसी मेजर का राइट साइड बनाओगे, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड बनाओगे। तो आपको उसी लेंथ का पॉइंट ड्रॉ करना है ओरिजिन से राइट साइड अगर आप पॉजिटिव हैं, लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पॉइंट h, k ड्रॉ करना है, तो h अगर पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में h यूनिट लोगे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में h यूनिट लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप 90 डिग्री पे k यूनिट लोगे। अब 90 डिग्री ऊपर जाना है या 90 डिग्री नीचे जाना है, वो कैसे पता चलेगा, वो k के साइन में पता चलेगा। k अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे, k नेगेटिव है तो नीचे जाओगे। अकॉर्डिंगली आप अपने सही क्वाड्रेंट में लोकेट हो जाओगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपके क्लास तक सवाल आएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में हमने क्या सबसे अच्छी बात सीखी थी, हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में सीखा था कि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। x1 माइनस x2 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। और अगर y एक्सिस पे है तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, क्योंकि एब्सिसा 0 होगा तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन y एक्सिस। तो ऑर्डिनेट की डिफरेंस y1 माइनस y2। उसके बाद हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने x1 y1 के लिए किया था। तो आप देख सकते हो हमने pr का लेंथ क्या निकाला था, y1 माइनस y2, और qr का लेंथ क्या निकाला था, x1 माइनस x2। ये दोनों क्या थे, ये दोनों बेस और हाइट थे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने pq लेंथ क्या बताया था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दैट वाज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई डिस्टेंस फॉर्मूला पूछता है तो यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या आप कह सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
अगर आपसे कोई पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोले तो आपको पता है कि x1 y1 x, y हो गया है और x2 y2 0, 0 हो गया, तो x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हुआ, अंडर एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट स्क्वायर ऑफ दैट पॉइंट। तो आपसे कभी भी कोई पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन पूछा जाए तो आप सिर्फ एब्सिसा का स्क्वायर और ऑर्डिनेट का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने बड़ी तिरंगबाजी की थी, हमने पूरा वो ट्रायंगल बनाया था एबीसी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक येलो ट्रेपेजियम बनाया था, फिर हमने पिंक ट्रेपेजियम बनाया था, और फिर हमने नीचे एक ट्रेपेजियम देखा था। तो हमने देखा था कि येलो ट्रेपेजियम प्लस पिंक ट्रेपेजियम इज द कंप्लीट फिगर, वो जो पेंटागन दिख रहा है। और उसमें से अगर मैं नीचे का ट्रेपेजियम सब्ट्रैक्ट कर दूं, येलो और पिंक का जो फ्यूजन है, अगर वो ट्रेपेजियम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या पीस बचेगा, वो ट्रायंगल बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLNC will give me area of triangle ABC, which is exactly written। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABLM कैसे निकाला था, आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABLM के लिए आपको पता है, ये और ये इसका, ये और ये आपके पैरेलल साइड्स थे जो कि y2 और y1 थे, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट क्या थे LM, दैट इज x1 माइनस x2। तो हमने एरिया ऑफ, तो येलो क्या हो गया, दिस वाज y2, दिस वाज y1, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट क्या था x1 माइनस x2। उसी तरीके से पिंक एरिया क्या था, दिस वाज नथिंग बट y3 y1, तो आपने कहा सम ऑफ पैरेलल साइड y1 इनटू y3, और डिफरेंस क्या था x3 माइनस x1, सो हाफ इनटू x3 माइनस x1 इनटू y1 प्लस y3। उसी तरीके से हमने नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला था, दिस वाज y2, दिस वाज y3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इज दिस, एंड हाइट क्या था x3 माइनस x2 और हाफ से मल्टीप्लाई किया था। तो मैंने ये चीज आपको बता दी थी कि दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिससे हमारा को कैलकुलेशन करके ये आया था, ये एक्सप्रेशन आया था हाफ, और ये एक्सप्रेशन को जब हमने सिमेट्री में दिया था तो कुछ ऐसा आया था। तो हमने फॉर्मूला बना दिया कि जब भी आपको ट्रायंगल ABC चाहिए तो आप पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट A चारों को आप ऐसे लिख दो कॉलम में, x कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिखो, y कोऑर्डिनेट नीचे करो। तो आपने ये 4 नंबर्स लिख दिए, आप A को Q से कनेक्ट कर दिए, P को S से, तो जो भी डाउनवर्ड एरो है उसको सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और जो अपवर्ड एरो है उसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और दोनों का डिफरेंस निकाल के मॉड वैल्यू लिया, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने फ्यूज किया कि कोलिनियरिटी कैसे बता सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, अगर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया क्या होगा 0। तो आप कह सकते हो कि 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी टेस्ट करने के लिए मुझे इन तीनों पॉइंट का एरिया निकाल देता हूँ। इन तीनों पॉइंट के एरिया के लिए आपको क्या आता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0। इसका मतलब क्या है, ABC आर कोलिनियर, राइट। सेम वे अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो आप कह सकते हो कि मैं 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके काम कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो जनरल रिजल्ट आएगा वो सबके लिए वैलिड है, आप किसी भी पॉलीगॉन से। तो अगर आपको कोई इसका भी एरिया निकालने को देता है, तो लेट्स से you call this as, let's say you call this as x1 y1, let's you call this as x2 y2, let's say you call this x3 y3, you call this as x4 y4, you call this as x5 y5, and you call this as x6 y6। तो आप देख रहे हो कि आपने एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लिया है, तो आप क्या करोगे, हाफ बाहर रखोगे, आप लिखोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x1 y1। अब आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाले को रेड से कनेक्ट कर दो, आपने इनको रेड से कनेक्ट कर दिया, इसको एक साथ पेयर करके ऐड कर दो, फिर उसके बाद आप नीचे से ऊपर को ग्रीन से कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, फिर क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकाल के एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई करो। दिस finishes your theoretical aspect of coordinate geometry. In the next lecture we'll be doing the problem solving. At the same time, assignment for this lecture is finish your NCERT. So you are the assignment is just go to your NCERT book, open your NCERT book and finish your coordinate geometry exercise. If you're facing any problem, do send us your doubts, we'll be able to
हैंडल दैट। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विल मीट वेरी वेरी सून, बाय बाय।